مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنا ہے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ویڈیو کے نیچے ایک جگہ لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیجئے، وہ سفید ہو جائے گا. اس کے سفید ہوتے ہی رائٹ سائڈ میں ایک گھنٹی بن کر آئے گی بیل، اسے بھی ٹچ کر دیجئے. اور بیل کو ٹچ کرنے کے بعد 3 آپشن آئے گی. اس میں پہلا آپشن آل کا رہے گا ALL، اس کو بھی ٹچ کر دیجئے. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک سچے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، حکومت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، ترقی کریں، آگے بڑھیں، تو پھر آپ کو چینل کی مالی مدد، فائنینشیل ہیلپ کرنی پڑے گی. اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے. اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے. تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923222261. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہر ہفتے یا ہر مہینے اپنی طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے. آج سنڈے ہے، پھر بھی ہم نے چھٹیاں بند کر دی ہے. سنڈے کو بھی ہم کام کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دیکھتے ہیں، تو اب ہم نے اپنا آرام، اپنی چھٹیاں بھی ختم کر دی ہے. ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میں دلی میں ہوں. حضرت مولانا ارشد مدنی نے یہاں باقاعدہ بلایا ہے کسی اہم کام کو لے کر. جمعیت علماء کی طرف سے میں یہاں پر آیا ہوں. میں دلی میں ہوں. یہاں سے باقاعدہ ہم لوگوں نے گزشتہ کل مرکز کے ماحول کو بھی، جو نظام الدین مرکز ہے، تبلیغی مرکز ہے، وہ آج تک بند ہے. جس طریقے سے ملک کی بدماش میڈیا نے ماحول بنایا تھا مرکز کے خلاف، وہ منظر بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. آئیے پہلی بڑی خبر اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ وسیم رضوی، جس خبیث نے، جس شیطان نے قرآن مجید کے تعلق سے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کہی اور سپریم کورٹ میں باقاعدہ پٹیشن داخل کی، اس کو لے کر جسٹس سہیل اعجاز صدیقی صاحب کا بڑا بیان آیا ہے. جسٹس سہیل اعجاز صدیقی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پٹیشن پہلی نظر میں سپریم کورٹ خارج کر دے گا، کیونکہ سپریم کورٹ اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا. یہ مذہبی آزادی اور عقیدے کے تحفظ کا معاملہ ہے، چنانچہ سپریم کورٹ یہ کہہ دے گا کہ یہ ہمارے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے. وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید کے خلاف داخل پٹیشن پہلی نظر میں جہاں خارج ہوگی، آئینی حق کے ناجائز استعمال کے پیش نظر وسیم رضوی پر باقاعدہ بھاری جرمانہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی حاصل کرنے، قانون سے بچنے، مہنگائی اور کسان تحریک کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں پہلے ہی دل سے کہہ رہا ہوں کہ وسیم رضوی جو ہے وہ ایک پالتو کتے کی حیثیت رکھتا ہے گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ کے اشاروں پر ہی یہ سب سارا کام ہوتا رہتا ہے. اور وسیم رضوی جیسے پالتو کتے وقت پر استعمال ہوتے رہتے ہیں تاکہ ملک میں ایسا فرقہ پرستی کا ماحول بنا رہے اور اصل مدوں سے دھیان ہٹا رہے. ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے مغربی بنگال سے. جی ہاں، مغربی بنگال میں الیکشن کی گرمی ہے اور اس وقت یہ سمجھے کہ ممتا دیدی ہو یا BJP ہو یا دوسری پارٹیاں ہوں، سب ایک دوسرے پر لفظی حملے تو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ممتا دیدی پر تو باقاعدہ جسمانی حملہ بھی ہوا ہے. اس طرح کا بیان خود ممتا دیدی نے دیا ہے. لیکن اس حملے کے بعد ممتا دیدی کو کافی
लोगों में और मकबूलियत मिल गई है और ममता दीदी के ताल्लुक से लोगों में हमदर्दी बढ़ गई है। वहीं पर बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत ये खड़ी हो रही है कि किसानों के लीडर राकेश टिकैत ये कोलकाता पहुंचे हैं और इन्होंने कोलकाता में किसान महापंचायत के दौरान खिताब करते हुए, भाषण करते हुए बीजेपी पर कड़ा हमला बोला और कहा कि बंगाल के अवाम समझदार है, सोच कर ही वोट करेंगे। किसान लीडर राकेश टिकैत ने गुज़िश्ता कल कोलकाता के भवानीपुर में महापंचायत में शिरकत करते हुए अवाम से अपील की, जनता से ये अपील की कि बीजेपी किसान मुखालिफ जमात है और किसानों के मफादात और उनके मसाइल सुनने के लिए मरकज़ी हुकूमत के पास वक्त नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल की जनता समझदार है, वो सोच समझकर वोट करेंगे। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए स्वराज इंडिया के लीडर योगेंद्र यादव ने भी कहा कि किसान चाहते हैं कि बीजेपी को सबक सिखाया जाए। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त किसानों ने यह तय कर लिया है कि जहां जहां बीजेपी इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगी, हम उसका ताक़ुब करेंगे, उसका पीछा करेंगे और बीजेपी की किसान दुश्मनी और मुल्क दुश्मनी को भी हम वाजे करेंगे। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और भाजपा अडानी और अंबानी जैसे लोगों की दलाली कर रही है, इसको भी हम खुलकर लोगों के सामने बयान करेंगे। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है कि ज्ञानवापी मस्जिद और शाही ईदगाह के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है। आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद की जानिब से इस पर अवामी बहस की हिमायत की। मोहन भागवत ने तहम्मुल से काम लेने को कहा है। जी हां, बाबरी मस्जिद की जगह पर अदालत उज़्मा की जानिब से राम मंदिर की तामीर की इजाज़त मिलने के फैसले से हौसला पाकर अब शरीरों के हौसले बढ़ गए और अब वो ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद की तहरीक को अब आरएसएस की हिमायत भी मिल चुकी है। काबिल जिक्र बात यह है कि यह समझा जाता था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर की तामीर की इजाज़त मिलने के बाद से आरएसएस और दीगर हिंदुत्ववादी तंजीमें मुतमईन हो जाएगी और मस्जिद किसी मस्जिद या इबादतगाह पर उनकी बुरी नज़र नहीं है। लेकिन अब जाहिर हो रहा है कि बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद इन शरीरों के हौसले बढ़ गए हैं और मुल्क की दूसरी मस्जिदों पर भी इनकी खबीस नज़रें टिक चुकी है। नाज़रीन, चौथी बड़ी खबर इस वक्त जहाज से सफ़र करने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि प्यारे मुल्क भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात पर डीजीसीए ने नई गाइडलाइन जारी की है। अगर मुसाफिर फ़्लाइट में मास्क नहीं पहनता है और साथ ही कोरोना गाइडलाइंस के खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर मुसाफिर बार बार ये गलती दोहराता है तो इसके हवाई सफ़र पर तवील मुद्दती पाबंदी भी लगाई जा सकती है। डीसीजीए की जानिब से जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि एयरपोर्ट में दाखिल होने के बाद से लेकर निकलने तक मास्क पहनना लाजमी होगा। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सफ़र के दौरान जो मुसाफिर समाजी फासला, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन पर अमल नहीं करता है तो उसको फ्लाइट से उतार भी दिया जाएगा। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आलमी सियासत में बढ़ते दखल के साथ भारत का इम्तिहान भी बढ़ा है। कोविड की किसी मीटिंग में पहली मर्तबा शामिल हुए चारों मुल्कों के सरबराहों के खिताब में यह फ़र्क वाज़े तौर पर नज़र भी आया। चीन के मामले में बिलखुसूस जारह नज़र आए अमेरिका और जापान के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अंदाज कहीं ज़्यादा संभला हुआ नज़र आया। वज़ीर आज़म ने बताया कि आलमी भलाई के साथ ही उन्हें मुल्क के मफादात की भी फिक्र है, ये मुनासिब भी है और मुतवक्की भी है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि चीन की तौसी पसंदी की वैक्सीन अब मिल गई है, लेकिन वैक्सीन को लेकर बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पूरे मुल्क में मुहिम हुकूमत की जानिब से चलाई भी जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आ रहा है कि अभी भी भारत में लोगों को इस वैक्सीन पर मुकम्मल एतमाद हासिल नहीं हो पा रहा है। जबकि गोयल का बड़ा बयान आया है, वज़ीर रेलवे पीयूष गोयल का बड़ा बयान आया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने कोविड-19 के टीकों की तैयारी का काम किया है और दुनिया को इन टीकों की सप्लाई करने वाला मुल्क बन गया है भारत। पीयूष गोयल ने कहा है कि तकरीबन 75 कंट्रीज
75 मुल्कों को हिंदुस्तान से कोविड टीका जा रहा है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है। जी हाँ, आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के हर दिल अजीज चहीते युवा नेता अखिलेश यादव, साबिक सीएम उत्तर प्रदेश, खबर आ रही है कि अखिलेश यादव समेत तकरीबन 20 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई। मुरादाबाद के थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस केस में SP के चीफ के अलावा पार्टी के तकरीबन 20 नामालूम कारकुन भी शामिल है। इन सब के खिलाफ दफ़ा 147, 342 और 323 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के ज़िला सदर की जानिब से दी गई तहरीर की बुनियाद पर सहाफ़ियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने दफ़ा 160, 341, 332, 353, 504, 499 और 120B के तहत 2 नामजद सहाफ़ियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे खिलाफ FIR बीजेपी की मायूसी का सबूत है। जी नाज़रीन, इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो माहौल बना हुआ है, पूरा अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की बदतर सूरत हाल है और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी और मरकजी सरकार अपनी अपोजिशन को कुचलने और दबाने के लिए उन पर केसेस दाखिल कर रही है या ED और CBI या इनकम टैक्स को उनके पीछे लगाया जा रहा है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे खिलाफ FIR बीजेपी की मायूसी का बड़ा सबूत है। नाज़रीन, इस वक्त केरला से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, केरला में भी इलेक्शन है, तमिलनाडु में भी इलेक्शन है, मगरबी बंगाल में भी इलेक्शन है। और मैंने गुज़िश्ता कल दिल्ली के इंडिया गेट पर लाइव करते हुए मैंने ये जुमला कहा कि कोरोना बड़ा होशियार है, बड़ा ज़हीन है, बड़ा चालाक है। जहाँ जहाँ मोदी जी प्रचार के लिए जा रहे हैं, अमित शाह जी प्रचार के लिए जा रहे हैं, या फिर जिन स्टेट्स में इलेक्शंस है वहाँ पर कोरोना बिल्कुल भी आने का नाम नहीं ले रहा है, वहाँ घुसने को तैयार नहीं है। लेकिन खैर, केरला से ये बड़ी खबर आ रही है कि केरला में UDF इत्तेहाद में सीट शेयरिंग पर इत्तेफाक हो गया। केरला असेंबली इलेक्शन का वक्त बहुत करीब है, जिसके लिए बाएं बाजू इत्तेहाद और कांग्रेस के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के माबैन असल मुकाबला होगा। केरला में असेंबली इलेक्शन के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसका नतीजा 2 मई को आएगा। इस सिलसिले में कांग्रेस के ज़ेर क़यादत इत्तेहाद यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट या UDF में सीट शेयरिंग से मुतालिक मुआहदा तय पाया है। कांग्रेस 91 सीटों पर मुकाबला करेगी। इस सीट शेयरिंग के तहत कांग्रेस 91, वहीं IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 27 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ेगी। इसके अलावा RSP 5 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ेगी। NCP 2 सीटों पर, जनता दल 1 सीट पर और यूँ समझिए कि MP 1 सीट पर, KCJ 1 सीट पर और RMP 1 सीट पर मुकाबला करेगी। इस तरह UDF इत्तेहाद में सीट शेयरिंग पर केरला में इत्तेफाक हो गया है। नाज़रीन, इस वक्त मैं दिल्ली में हूँ और दिल्ली की 2 बड़ी खबरें मेरी निगाहों के सामने हैं। जी हाँ, दिल्ली के तकरीबन 3 बार एसोसिएशन के कई वकाला, कई एडवोकेट्स आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के द्वारका बार एसोसिएशन, नई दिल्ली बार एसोसिएशन और दिल्ली बार एसोसिएशन के बहुत सारे वकाला आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी आपके कौमी कन्वीनर और वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपनी रिहाइश गाह पर पार्टी की रुकनीत 3 बार एसोसिएशन के वकालों को टोपी और पटका पहनाकर उनका इस्तकबाल किया, पार्टी में उनका खैर मकदम किया। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर दिल्ली की ये भी आ रही है कि कोरोना वॉरियर के कुंबे को तकरीबन 1 करोड़ रुपए का चेक पेश किया गया। राकेश जैन हिंदू राव अस्पताल में लैब टेक्नीशियन थे, वो आखिरी सांस तक आवाम की खिदमत रहे, ऐसा केजरीवाल ने बयान भी दिया है। और इस कुंबे को बाकायदा 1 करोड़ रुपए का चेक भी उनकी खिदमत में, उनकी सेवा में पेश किया है। नाज़रीन, अब यूँ समझिए कि 110 दिन के करीब किसानों के आंदोलन को हो चुके हैं और अभी खबरें आ रही है कि जाए मुजाहिरा पर जहां आंदोलन हो रहा है वहां पर किसानों की तादाद में कोई भी कमी नहीं आई है। गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर मगरबी यूपी के किसानों की पहली बार मीटिंग होगी, लेकिन राकेश टिकैत और किसानों की एक टोली जहां पर बीजेपी के खिलाफ मगरबी बंगाल में प्रचार प्रसार में लगी हुई है और बीजेपी के खिलाफ मुहिम चला रही है, वहीं पर दिल्ली में होने वाले
किसानों के आंदोलन में किसी भी तरीके की पब्लिक में कमी नहीं आई है और इनका जोश दिन ब दिन बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है।